ਨਹੀਂ ਗਰਾਈ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਗਰਾਈ ਜੇ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਰਵਾਨੀ खाता बना लिया है ये सारा क्रेडिट की प्रेसिडेंट वाले को जाता है उन्होंने बड़ी मतलब पहले ये करके बनाया प्रेसिडेंट को सारा आज की बहुत सारे तो बताया मैं तो बदल साहब सिला कि ये भी है ये का एक मतलब बदलता واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم جزاك الله عید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بالے سبالے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مدینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے جب آئے موت کھا کے طیب عمل کر جسم پر میرے سپرد خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر ان کو لحد میں بوجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے گناہگاروں میں خود کے شامل پارسا ہوں گے شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے
غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نیر تیرے ظلمت کدے بھی ستارے جگمگائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 بار قرآن شریف پڑھ لیں. اس کے بعد مطلب کہ ہمارے پیارے دوست مظفر حسین صاحب کے والد محترم کے لیے دعا ہوگی اور ہمارے ایک ساتھی اشرف صاحب ہیں ان کی ساس اماں کی ڈیتھ ہوگی تو ان کے لیے دعا ہوگی اور جو ہمارے مئی کے شہداء ہیں ان کے لیے دعا ہوگی. تو سارے لوگ الحمد شریف اور 3 بار قرآن شریف پڑھ لیں. صاحب ایک منٹ سب دعا کرو پلیز. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ العالمین ہم نے جو تیرا پاک کلام پڑھا الحمد شریف پڑھی کل شریف پڑھا یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی کو غلطی ہوگی اللہ تو معاف فرما اور اس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما. اللہ العالمین اس ذکر خیر کا ثواب ہم سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفتاً ہدیتاً عاجزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں. میرے آقا قبول اور منظور فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب 1,24,000 کم و بیش پیغمبر 5 پاک 12 امام 14 رسول 4 یار صحابہ اکرام تبا تابعین امہات المومنین کے روا پاک اسلام شاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین کی روا پاک کو اس کا ثواب بچا. یا اللہ شہداء کربلا کی روا پاک کو اس کا ثواب بچا. یا اللہ ان سب برگزیدہ ہستیوں کے صدقے میں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس پاک کلام کا ثواب بھائی مزمل صاحب کے والد صاحب جو پردہ فرما گئے اللہ ان کی روا پاک اور بھائی صاحب کی جو دامن فوت ہوئی ہیں اللہ ان کی روا پاک اچھا. یا اللہ خصوص بالخصوص اس کا ثواب شہدائے بنیان مرصوص کے جو شہداء ہیں اللہ ان کی روا پاک اچھا ان کے درجات کو مزید بلند فرما. یا اللہ حاضرین محفل کے عزیز و اقارب رشتہ داروں دوست احباب جاننے پہچاننے والوں میں جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو چکی ہیں اللہ سب کی روا پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بس مندگان کو سب جمیل عطا فرما. العالمین تو معاف فرما ہم سے درگزر فرما. یا اللہ جو ہم زندہ ہیں ہم پہ اپنا خاص کرم و رحم فرما. ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ کریم آباد شاہ شاہان عال برابر صدق اللہ رسول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ وافضل الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہمارے اربا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی 25ویں ایڈیشن ہے. تو جتنے بھی ساتھی آئے ہیں سب کو ہم دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو جیسا کہ پہلے ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن کا ایک وہ کرتے ہیں دوسرے کا, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے انٹروڈکشن کراتے جائیں اپنا. سر کاشف صاحب کی سے شروع کریں اور پھر ایسے ہی کمپلیٹ ہو جائے. جی جی چیف کاشف ریٹائرڈ اور علی باغ سے رہائش ہے. جی ایس او گریڈ ہے جسٹ ابھی جنوری میں ریٹائر اے ڈی سندور خان سے ماشاء اللہ. السلام علیکم سیٹ اسسٹنٹ 99 میں ریٹائر ہوں. کرنی ہوتی ہے.
चीफ ऑफिसर न्याज एमटी फिटर 2020 में रिटायर्ड हुआ, अभी अलीबाग में है। अस्सलाम वालेकुम, चीफ टेक रफीक शहजाद और 98 में रिटायर्ड हुआ था एमटी फिटर। चीफ रेंटर से रिटायर मोहम्मद फारूक 97 में रिटायर्ड हुआ था और अभी अली पार्क में रह रहा हूँ। तो साहब आपने कब रिटायरमेंट बताया? 95 आपने रिटायरमेंट कब बताया? सॉरी दो खड़े होकर फिर बताया। तो क्या मैं भी चेक कर लिया सही मेरी एंट्री थी और मैं 2024 में अभी इस साल जनवरी में रिटायर्ड। वेलकम राणा साहब, वेलकम जी, हमारे नए मेंबर हैं। चीफ टेक आमिर हसन 1990 में रिटायर हुआ और ग्राउंड सिग्नल ट्रेड था मेरा और अलीबाग लाहौर के अंदर मैशिंग अली Key one to some loss MTV The chief right of sir Muzammil Irfan Fitter Muslim Town में है। माशाल्लाह। मिर्ज़ा असदुल्ला सईद रिटायर्ड चीफ टेक रिटायर फिटर मेरा ट्रेड था। 8011 मेरी एंट्री है, 1998 में रिटायर्ड हुआ और लंबा पार्ट में मेरी रैश है। चीफ आर्ट से रिटायर्ड सुल्तान अली 2012 में रिटायर्ड हुआ एग्रोमेंटल हॉल से। बीकन स्कूल सिस्टम में जॉब कर रहा हूँ और अभी अरवा फाउंडेशन का सेक्रेटरी लाहौर में और आपकी खिदमत कर रहा हूँ। फ्रॉम माउंट बेस 2020 और प्रेजेंटली मैं DHA फेज 8 में रह रहा हूँ। रिटायर्ड चीफ ऑफिसर मोहम्मद अब्बास गुजरात ऑपरेटर 2001 में मैं रिटायर हुआ, अभी अलीबाग में रहा। चीफ ऑफिसर राणा लियाकत अली 2007 में रिटायरमेंट है और अभी अली पार्क में रहा है। चीफ ऑफिसर रिटायर्ड अब्दुल गफूर GC ट्रेड के अंदर बेटा सामने से 2021 8 जुलाई को रिटायरमेंट हुई है, अली पार्क लाहौर में रह रहे हैं सब और शाहीन फाउंडेशन सिक्योरिटी सर्विसेज को खिदमात दे रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह लोग खिदमत भी कर रहे हैं और जो किसी के काम आ सकते हैं उसमें भी शिरकत करते हैं। आबिद MPT रिटायर्ड 2003 में रिटायर हुआ और मिशनरी कंपनी में रहा। AW मंजूर हुसैन रिटायर लाहौर में रह रहा हूँ सर, 2006 में रिटायर हुआ। चीफ टेक नसीर इलेक्ट्रिकल फिटर 7504 इसकी ना बाद में सामने से दिखा की जा रही है उसे खुश आमदीद कहते हैं। एक रिक्वेस्ट जो मेरे ख्याल में हर मीटिंग में मैं करता हूँ कि सारे लोग कोशिश किया करो कि खुशी के साथ और एक दूसरे को बता के आया करो, क्योंकि ये हमें 2-4 माह हमने मेम्बरशिप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करना है अपना फाउंडेशन के अगराज काउंसिल का भी, और इसका पर्पज़ भी बताना है कि मतलब कि हम क्यों ये इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मुझे पूछे कि ये क्यों इकट्ठे होते हैं, सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा कि इधर आके बैठ जाना और दूसरे से मिल लेना ही मेरे ख्याल इससे ज़्यादा मकसद हमारा पूरा हो जाता है। बाकी सब चीज़ें उसके बाद आती हैं, तो उसके बारे में भी मतलब है कि अगर शुरू करो तो हो सकता पूरा दिन ही गुजर जाए, लेकिन मैं आपको मतलब कि 1 या 2 एग्जाम्पल फोन करवा देता हूँ। जैसे भी पिछले दिनों में मुझे एक कॉल आई शेखुपुरा से, तो उन्होंने मुझे तारफ़ इस तरीके से कराया कि सर आपको शायद मेरा ना याद हो, तो मैंने आपको देखा हुआ है, मैं आपकी एक दफ़ा कुछ साल पहले अपना फाउंडेशन की मीटिंग में आया था, तो मेरा एक अजीज़ जानने वाला डिफेंस सी में है थाने में, वो ना मुलाकात करने दे रहे हैं और ना ही मतलब कि वहाँ पर मिलने दे रहे हैं। बड़ी परेशानी है, तो हमें कोई फेवर दे। तो मेरे जहन में एकदम आया, कहता मेरे बहुत सारे लोग और भी हैं, लेकिन मतलब मुझे कोई बंदा ऐसा दे रहा जो मेरी मुलाकात करा दे, वो मुलाकात नहीं करने दे रहा है, क्योंकि वो 2-3 पर्चे हैं उसके, कोई पता नहीं मेरे घर विकेट का पर्चा है, मुकदर का इस तरीके से। तो मैंने उसको नंबर दे दिया अब्दुल गफूर का। मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि चलो अब्दुल गफूर की तरफ ज़्यादातर लोगों को भेज देता हूँ। तो अब्दुल गफूर की मुझे कॉल आ गई, मैं कहा यार अब्दुल गफूर मैंने इसको जानता नहीं हूँ, लेकिन नाम अरवा फाउंडेशन का लिया, हमारे एयरपोर्ट का है,
جو آپ کی ایفرٹ ہو سکتی ہے آپ کریں, جو میرے لائق میں نہیں تھا. بار کافی اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اس بندے نے کس کو اپروچ کیا, کہاں اپروچ کیا, فیس ٹو فیس اس بندے کی مطلب کہ وہاں تھانے سے نکال کے اس کو مطلب اس کی کو گھنٹہ ایک ملاقات کرائی, اور اس بندے نے مطلب کہ بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. لیکن ابھی تک اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہے کہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے. مطلب کہ آپ لوگوں نے ایک فاؤنڈیشن کے حوالے سے, کیونکہ ایئر فورس کے لوگ ہیں, وہ کوئی نہ کوئی بات ہے بے شمار مثالیں. ایسے ہی مطلب ہے کہ مجھے فضائیہ میں کہا گیا جی بچیوں نے وہ انٹرنشپ ہوتی ہے جہاں تو انہوں نے ان پہ وہ تھیم لکھنا ہوتا ہے, جو جب BBA کرتے ہیں یا کوئی بھی سبجیکٹ BS کرتے ہیں ان پہ وہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. تو میرے ذہن میں مطلب ہے کہ آئی میں ابھی کہاں کہوں, زیادہ تر کام اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے فاروق صاحب ایک وہ کمپنی میں مینیجر ہیں. تو میں نے جب ان سے بات کی تو اللہ کو سلامت رکھے, انہوں نے بھی مطلب کہ فضائیہ میں ایک میسیج بھی آپ نے پڑھا ہوگا, لیکن اس کے بعد وزٹ بھی کروایا وہاں کا, اور بہت آنر دی مطلب کہ سب لوگوں نے. اور مجھے میں دل کی گہرائیوں سے پورے اروا فاؤنڈیشن کی طرف سے اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق صاحب آپ کا بھی. اور بہت تعریف ہو رہی تھی مطلب کہ فضائیہ کے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یار انہوں نے بہت اسی اچھا انٹرٹینمنٹ بھی کیا, اور جو ان کے سوالوں کے جواب سے وہ بھی تفصیلاً دیے اور بڑی عزت دی. تو یہ ساری چیزیں جو فیض ہے میرے خیال میں اسی پلیٹ فارم سے ہی ہے. تو اسی طریقے سے مطلب کہ میرے دل میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب مہینے بعد ایک دن ہمارا ہوتا ہے تو ہم چھوٹی سی مصروفیت سے اس میٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے بہت سارے دیکھے, تو خدا رہا مطلب کہ چھوٹی چھوٹی مصروفیت سے اس کو نہ چھوڑا کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے. جب بندے کو کبھی پریشانی آتی ہے یا کبھی کوئی بھوک پڑتی ہے تو پھر مطلب کہ بندہ سوچتا سب سے پہلے ہم اپنے کنبے کی طرف بھاگتے ہیں, کوئی بھی پریشانی نہیں, کوئی بھی بات نہیں. تو کہنے بھی مطلب کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارے لوگ اس میٹنگ کو سیدھا بھی لیا کریں, اور کوشش کیا کریں کہ مہینے کے سینٹر میں بھی ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کریں, تاکہ ہم ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹ سکیں اور ایک دوسرے کے توقع میں کام آ سکیں. تھینک یو ویری مچ. میں ریٹائر ہوں 20 سال 2025 میں, تو لیکن اروا فاؤنڈیشن سے میں کافی عرصے سے وابستہ ہوں. خدمات سر انجام دے رہے ہیں, چھوٹی موٹی جو سر ذمہ داری دیتے ہیں, اور کبھی آگے فوٹوگرافی کر رہے ہیں جب آن ڈیوٹی تھے. تو ماشاء اللہ سر ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور بہت افیکٹولی پلیٹ فارم ہے اگر ہم اس کو یوٹیلائز کریں. جیسے سر نے 2-3 ایگزامپل دی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کام اسی طرح کے جب پرابلم بنتی ہیں, مسائل بنتے ہیں, تب ہم پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک سر اسد صاحب کی صورت میں, جو سلطان صاحب کی صورت میں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے, اور ہر طرح کے اینگل میں, ہر طرح کی سچویشنز میں یہ پلیٹ فارم کام کر رہا ہے, اور سر بہترین سی خدمات انجام دے رہے ہیں اروا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم. تو اس چیز پہ بہت بہت شکریہ, اور ہماری دعائیں ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح آگے کامیابی دے اور بڑھائے, اس کو اضافہ کرے. تو بھی میں رانا صاحب سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر رانا صاحب پلیز. میٹنگ اٹینڈ کی, اور یہ جو اس کے ارادوں میں خاص طور سے سارے لوگ مل جاتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے وہ سالو کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے الحمدللہ. سارے بڑی خوشی ہوتی ہے تمام لوگوں کو دیکھ کے, اور اسی طرح سے مستقبل میں بھی اللہ کرے چیزیں ساری چلتی ہیں. شکریہ سر. باقیوں کو ٹائم بعد میں دیتے ہیں. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پریزیڈنٹ اروا ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان میں جاسف اللہ صحیح صاحب کی, وہ اپنے خیالات کا. سب سے پہلے تو میری تقدیر زمن صاحب سے جلدی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو دور رحمت میں جگہ دے, درجات بلند کرے. والد صاحب کا جانا زندگی ہے, جہاں سب چلے جاتے ہیں. ہمارے والد صاحب جب حیات تھے وہ اپنے والد صاحب کو بھول چکے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا نظام رکھا ہے کہ ہمیں بھولنے کی توفیق دی ہوئی ہے, ورنہ شاید تو. لیکن جب نیا نیا واقعہ ہوتا ہے تو انسان افسردہ بھی ہوتا ہے, بہت سی چیزیں مس کر رہا ہوتا ہے. والد صاحب کے ساتھ بہت سی ان کی ایفیلیشن بھی بہت زیادہ تھی چھوٹے ہونے کے ناطے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, صبر دے, اور ہم بھی دعا گو ہیں ان کے والد صاحب کے لیے. اس کے بعد میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بہت کچھ ہم نے کیا جو بظاہر چھوٹا چھوٹا اگر ہم ان کو اکٹھا کریں تو ہیوج کام ہم نے کیا ہوا ہے اروا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. جیسے ابھی ریسنٹلی 2 دن اگزامپل سلطان صاحب نے دی, تو میں سلطان صاحب کا اسپیشلی شکر گزار ہوں کہ اس سارے یہ ٹیم ورک ہے جس میں آپ لوگ شامل یہاں بیٹھے, یہ بھی آپ ہمیں ہمت دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹیم ورک ہے. غفور صاحب اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سلطان صاحب کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس پلیٹ فارم کو آگے چلانے کا یا اس کو پھولنے پھولنے کا موقع دینے میں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے بعد ہے
پھر آپ لوگ سب ہیں، لیکن میں سلطان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، فروخ صاحب کا بھی، اور مطلب کہ جو اپنا سر غفور صاحب کا، کہ یہ لوگ جب ان کو آواز دیتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بازو باقی کھڑے ہوتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ جن کو بھی ہم آواز دیں ہوئے کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں۔ میری خواہش تھی کہ بھی ہم کچھ چھوٹا موٹا کام کریں، تو میں کسی کو نہیں بتایا، ابھی آتے ہوئے بٹی سے بات کی تھی کہ میں نے سکھے کی کہ نا اربا فاؤنڈیشن کا ہی وہاں پہ ہم لگائیں گے، بورڈ لگائیں گے کہ ایک چھوٹا سا سینٹر بنایا ہے سلائی کا، جس میں بچیوں کو سلائی سکھائی جائے گی، اور اس سے ہمیں ارننگ بھی اگر ہوئی تو وہ بھی اربا فاؤنڈیشن میں آئے گی۔ یہ آج اس کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ ہم نے وہ گھر کرائے پہ لے لیا ہوا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہم نے اپوائنٹ کر لیا ہوا ہے، اور ایک ہم نے ٹیچر ہائر کی ہے جو اس کو دیکھے گی، تو اللہ کرے یہ ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے بعد میں پہلے تو یہ تھا فنڈنگ کا، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ فنڈ ضرور دیا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑا کام کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہم بچیوں پہ تو فوکس کیے، جیسے میں نے بھی ابھی بچیوں پہ فوکس کیا، لیکن بچیوں سے زیادہ فوکس کرنا ہمیں بچوں پہ چاہیے، کیونکہ بچی کو جب ہم کوئی بھی سروس دیتے ہیں یا اس کو کوئی نوکری ملتی ہے تو اس کی ذات کے لیے ہوتی ہے، صرف وہ اپنی بچی اپنے میک اپ اپنا چھوٹا موٹا کام کر لیا یا اپنے بچوں تک، لیکن جب ہم کسی بچے کو نوکری دیتے ہیں یا بچہ ہمارا سروس کرتا ہے یا بچہ بزنس کرتا ہے تو وہ پوری فیملی پالتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچے جو میل جو ہیں ہمارے ان کے لیے کچھ کر سکیں، اس کے لیے فنڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خدارہ آپ یہ جو ہم بظاہر یہ اب یہ برا لگ رہا ہے کہ اگر کرم بٹی صاحب اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا پلیٹ فارم پہ اس پلیٹ فارم سے کوئی بڑا کام کر جائے، ہم جانے سے پہلے یا کم از کم اتنا اس کی بنیاد رکھ جائے ہمارے جانے کے بعد آنے والے اس کی عمارت کھڑی کر سکے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور فنڈ دیا کریں اور خوشی سے دیا کریں، یہ رائے کا نہیں جاتا۔ اگر ہم کھا لیں گے بالفرض، ہم اللہ نہ کرے ہمارے دل میں کھوٹ ہے تو وہ ہم اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ آپ اپنی نیت سے ضرور دیا کریں اور خوشی سے دیا کریں۔ کچھ لوگ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتے، اگر اس وقت نہیں ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، تو کائنڈلی آپ گھر جا کے جب بھی ہو اکاؤنٹ نمبر اکرم صاحب کا لے کے ہم نے فنڈ ضرور دیا کریں۔ جیسے آج چھوٹا سا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ہم نے چھوٹا سا وہ سینٹر کھولا ہے، اللہ کرے کہ بہت بڑا ہو سکے۔ تو آپ لوگوں کی دعاؤں، آپ کا ساتھ ہمیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کرے یہ پودا اور یہ گلدستہ پھلتا پھولتا رہے۔ بہت شکریہ۔ بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسی پلیٹ فارم سے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا پرویزر صاحب کی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ پسند کرتا ہے، ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کے لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی آیت کے ریفرنس سے پاکستان نے ایک جنگ لڑی جس کو نام دیا گیا اسی سے اخذ کر کے بنیان مرصوص، اور اس میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں، کوئی کریڈٹ دے رہا ہے ایکس کو، کوئی دے رہا ہے وائی کو، کوئی دے رہا ہے زیڈ کو، جی فلاں کی وجہ سے فلاں کی وجہ سے، اور جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے وہ بہت کم لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ آرمی چیف کی وجہ سے جیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی وزیر اعظم کی وجہ سے جیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے دعا کی اور جیت گئے، لیکن اصل چیز ہے وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد ہے، کہ اللہ کی مدد پہنچی اور ہم جیتے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخصیت جو ہے نا وہ امپارٹنٹ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید قسم کے جرنیل ہیں، جہاں جاتے ہیں پوری زندگی میں شکست نہیں ہوئی، ایون کہ ایک دفعہ کفر کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی جنگ لڑی، اس میں بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا،
ग़ज़वा ओहद में। ग़ज़वा ओहद में हज़रत खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे तो वो मुशरिकीन के साथ थे। बाकी ज़िंदगी में आपने जितनी जंगें लड़ी हैं आप कामयाब हुए। लोगों में ये ख्याल आया मुसलमानों में कि जी जिस जंग में खालिद बिन वलीद होते हैं ना वो जंग में फतह होती है। जंग शाम के महाज पे जंग ज़ोरों पे है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त हैं, आर्डिनेंस जारी करते हैं कि जी खालिद बिन वलीद जो है वो सिपा सलार के ओहदे से बर्खास्त किए जाते हैं और एज ए जनरल आम सिपाही के तौर पे वो जंग लड़ेंगे। और दूसरे हज़रत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जो है ना वो सिपा सलार हो। अब ये ख़त पहुंचता है किसके पास, जो नए आर्मी चीफ नए सेलेक्ट हुए हैं ना उनके पास हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त पहुंचता है। अब वो बड़े परेशान कि खालिद बिन वलीद तो सीनियर है मुझसे और सीनियर जर्नैल है और उनका तजर्बा भी मेरे से ज़्यादा है और अमीरुल मोमिनीन ने ये जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी। उन्होंने बुलाया हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन का ख़त आया और ये हुक्म है उनका। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं कोई मसला नहीं, मैं एज ए सिपाही लड़ूंगा, आप सिपा सलार हैं, आप मुझे आर्डर दें और जंग होगी। जंग हुई, जंग जीत गए मुसलमान। और जब वो वापस आए अमीरुल मोमिनीन से और पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन आपने जंग के दौरान क्यों कमांड चेंज की, अगर आपने करनी थी तो जंग के बाद कर लेते। तो आपने फरमाया कि मैं ये लोगों के ज़हनों से ये शक निकालना चाहता था कि ये फतह जो है वो खालिद बिन वलीद की वजह से हुई। फतह जो मुसलमान को होती है वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद से होती है और किसी शख्सियत की वजह से नहीं होती। और इस जंग में भी जो अल्लाह ने हमारे लाज और पर्दा रखा है ना, शायद कोई ऐसा कोई फ़कीर जिसको हम कोई समझते कुछ नहीं है, शायद उस बंदे के सदक़े में अल्लाह ताला ने हम पे वो करम किया। जो हमारे अमाल हैं, जो हमारे किरदार हैं, वो शायद मैं तो नहीं समझता कि हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ने जितना हम पे करम किया। ये जो हमने असला चलाया इससे भी बड़ा एक असला है, इससे भी बड़ी एक ताकत है। मैं एक मिसाल देता हूँ। ये हलाकू खान ने बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया, मुसलमानों की गर्दनों के मनार बनाए, ख़त्म कर दिया, हर चीज़ कब्ज़ा कर लिया। एक शख्स, एक अल्लाह का वली, उसने सोचा अब हलाकू खान का वो बेटा था या पोता था, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि जी हाँ बेटा था या पोता था, जो उस गवर्नर था उस एरिए का। वो बुज़ुर्ग ने सोचा कि मैं इसको जाके अल्लाह का पैगाम देता हूँ, तबलीग करता हूँ। वो गए उसके पास। अब वो बादशाह जो था हलाकू खान का बेटा, वो मतलब शिकार करके आया, कुत्ता उसके हाथ में है। अब उसने देखा कि मौलवी साहब है, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, कोई मुसलमान है और ये लाजमी बात है कोई मुझे दीन इस्लाम की बात करेगा, कोई दावत देगा। उसने कहा कि मैं इसके बात करने से पहले एक ऐसा सवाल कर देता हूँ कि ये लाजवाब हो गए और गुस्से में हो गए वापस चला जाएगा। उसने कहा कि हज़रत साहब आपकी बात मैं सुनूंगा, लेकिन आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा जी बताएं क्या सवाल है। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि ये जो मेरे कुत्ते की दुम्ब है, इसके बाल अच्छे हैं या आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। अब इतना स्टूपिड सवाल था, आम शख्स होता तो वो फ़ौरन जज्बाती हो जाता। उस बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर तो मैं ईमान की हालत में दुनिया से चला गया तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मैं ईमान की हालत से दुनिया से ना गया तो फिर तेरे कुत्ते की दुम्ब अच्छी है। अब वो बड़ा मुतासर हो गया। उसने कहा कि जी आप हज़रत साहब अंदर आ जाएँ, शाही मेहमान बनाया, बड़ी खिदमत वाज़िया की। फिर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दिया कि जिसने तुझे बादशाह बनाया तो उसकी बात मान, उसकी तौहीद का कायल हो जा। वो बंदा कहता है कि जी उस बुज़ुर्गों के साथ उन्होंने अहद किया कि मैं अभी वक्त नहीं है, मैं एक मुनासिब वक्त पे अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा, लेकिन कि अभी मुनासिब नहीं है। अच्छा, वक्त गुजर गया, वो बुज़ुर्ग फौत होने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की कि देखो बादशाह के पास जाना और उन्हें कहना कि मेरे बाप के साथ जो तूने वादा किया था ना वो मतलब वफा करो, पूरा करो। अब वो
बुजुर्ग फौत हो गए, उनका बेटा उस बादशाह के पास दोबारा गया, उसने कहा जी मेरे बाप ने वादा किया था, मेरे बाप से आपने वादा किया था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है, मेरे बाकी सारे जर्नैल एग्री हैं लेकिन एक जर्नैल जो है ना वो एग्री नहीं है इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं तेरी उससे डायरेक्ट मुलाकात करवा देता हूँ, आप उसको तबलीग करो, समझाओ, अगर वो मान जाए तो हम सारे मुसलमान हो जाएंगे। वो बुज़ुर्ग उन्होंने कहा जी बुला लो। जब वो बुलाया, बातचीत हुई तो उसने कहा कि जी मैं तो फौजी जर्नैल हूँ और मैं जो है ना असली ताकत से बात करता हूँ, आओ दोनों कुश्ती करते हैं, जंग करते हैं, अगर आपने मुझे गिरा लिया तो मैं मुसलमान हो जाऊँ, अगर मैं मुझे ना गिरा सके तो फिर आप मेरे दीन में आ जाना। अब वो जो हलाकू खां का बेटा था वो समझता था कि ये तो बुज़ुर्ग बड़े कमज़ोर हैं, ये तौहीन करेगा, ये मतलब बड़ा कड़ियल जवान है। उन्होंने कहा, आखिर में जब 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा तो बुज़ुर्गों ने कहा कि जी हमें इसकी दावत कबूल है, यानी हम इसके साथ कुश्ती करेंगे। और जैसे ही वो कुश्ती शुरू हुई तो पहले ही वार में उन्होंने बिछाड़ दिया, उसको लटा दिया और शिकस्त खा ली। और वो सारा जो था ना वो जितने हलाकू खां का बेटा और वो सारे वो मुसलमान हो गए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि काबे को पास बाँ मिल गए सनम खाने से, यानी वो बुतों के पुजारी थे, इस्लाम को मिटाने आए थे, लेकिन वो जो ताकत मज़ाइलों में नहीं थी, वो जो बुज़ुर्ग अल्लाह के नेक बंदे की ज़बान में तासीर थी और वो जो थी वो मज़ाइलों से भी ज़्यादा ताकतवर थी। ठीक है ना, ये मज़ाइल तो कभी कभी चलते हैं और ये मज़ाइल जो मोहब्बत वाला है ना ये हर वक्त हम चला सकते हैं और हर घर में चल सकता है। तो इससे बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारे झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो बात क्लोज़ करते हैं कि ये जो हमने जंग लड़ी है ये अल्लाह का फजल व करम था और हमारी कौम का इत्तेहाद था और हमें मतलब वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए। कोई कहता है जी चाइना के असला था इसलिए जंग जीत ली, कोई कहता है कि जी अमेरिका की मदद थी इसलिए जंग जीत। ओ भाई, चाइना का असला कोई चीज़ नहीं है, जो इंडिया के पास असला था वो भी कम नहीं था। अगर असले के साथ जंग होती तो इंडिया का असला कोई कम नहीं था। असल जज्बे जंग लड़ते हैं और जज्बे जंग जीतते हैं और हमारी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा था जो हमने जीती और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम की इज़्ज़त रखी और ये जंग अभी ख़त्म भी नहीं हुई। कोई समझे कि जी ये जंग ख़त्म हो गई है, ये कुफर और बातिल की जो इस्लाम और बातिल की जंग है ये अज़ल से है। जिस दिन बाब आदम को अल्लाह ने पैदा किया ना उस दिन से ये जंग चल रही है और क़यामत तक ये जंग रह रही है और मोमन को इसी जंग से आजमाया जाना है। और इसके बाद इस बात को यहीं क्लोज़ करते हैं। अल्लाह ताला अपने फजल से हमें मज़ीद भी सुरखूब करेगा कि अरवा फाउंडेशन की बात कर लेते हैं 2-3 कि अरवा फाउंडेशन में मेरी गुजारिशात हैं अगर वो कंसीडर की जाएं। एक तो ये है कि हमारा जो मीडिया सेल है ना उसको एम्पावर करना चाहिए। एक तो है कि जी मीडिया सेल की एक टीम होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं है कि जी वो हर इतना माशाल्लाह कि जी कोई बंदा अगर कोई लतीफ़ा सुना दे तो कहेगा जी अरबा फाउंडेशन के रिलेटेड तो ये लतीफ़ा नहीं है, ये लतीफ़ा तो किसी और के रिलेटेड है। मतलब ये थोड़ा सा जो है ना माशाल्लाह इसको रिलैक्स होना चाहिए। हाँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है कि जी वहाँ पे आप मजहबी बहस करेंगे अगर उस ग्रुप में या सियासी बहस करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। मज़हब और सियासत को मद्देनज़र अलहदा रख के ना तो वो जो जर्नल गपशप जर्नल है वो चीज़ें होनी चाहिए और वो अगर कोई करता है शेयर तो उसको चलने देना चाहिए बजाय इसके कि जी उसको डिलीट कर दिया जाए। या फिर ये जो फेसबुक का हमारा ग्रुप है उसमें भी सिवाय आप फेसबुक को उसको खोल के देख लें, सिवाय जो मीटिंग्स हैं या वो है या उन्होंने खुद चढ़ाई है उसके अलावा कोई आपको उसमें वो नहीं पोस्ट मिलेगी कि जी किसी मेंबर की कोई पोस्ट हो वो पूरा
फरोल के देख लें, वहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है किसी मेंबर की। तो एक तो ये चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मिच्योर हो चुके हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये 5 साल तो मुझे होने को है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आने से पहले की है। तो अब हमें जो है ना इसकी रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, जो कि पहले भी बड़ी बातें हुई लेकिन है कि जी वो कुछ देर के लिए बात चलती है और उसके बाद खामोश हो जाती है। रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और ताकि वो बुनियाद मजबूत होगी ना तो वो इमारत जो है ना देर पा हो। किसी मेरा नहीं ख्याल, ये 2 पर्सनैलिटी बैठी हैं, एक प्रेसिडेंट हैं, एक सेक्रेटरी साहब हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इनके अलावा कोई इस ओहदे का उम्मीदवार भी होगा। मेरे ज़हन में तो यही है, ठीक है ना। ये तो अगर इसको लीगल कवर दे दिया जाए ना तो ये ओहदा मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। तो ये मेरी सजेशन है, और इसको अगर कंसीडर किया जाए जिस लेवल पे भी, तो इससे हमारा अदारा मज़ीद मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना मज़ीद मजबूत हो, और एक दूसरे के साथ तामन वो तो हम करते ही रहते हैं और करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के लियो में ही तामन होता है, अच्छा इखलाक से बोल लेना भी वो भी बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच। वो बातें जो हमारे माइंड में नहीं थी या वो तरीके इस्लाम की बातें थी वो हमने सुनी। थैंक यू वेरी मच सर। साहब, सब चीज़ों का तजर्बा सब लोगों के साथ ही होता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से अपना ज़ाती तजर्बा बताता हूँ कि अल्लाह ताला मुज़म्मिल हुसैन के वाले साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझे सर मिर्ज़ा साहब इस्लामाबाद पहुँचने वाले से इस्लामाबाद जाने से 7:05 पे सर की कॉल आई घर पर, ऐसे सर 7:05 पे कॉल आई है। तो मेरे ख्याल में टोटल मैं पैनिक में, मैं कहा इस टाइम तो सदियाना 2.5-3 घंटे का सफ़र भी है, तो मैं पैनिक में मतलब कि जिस को बता सका ना, सबसे पहली कॉल मैंने सर अजहर साहब को की कि गाड़ी लेके आप निकले, मैं रेगुलर रोड पे आ जाता हूँ। दूसरी कॉल मैंने आदम साहब को, मतलब जो आगे आता गया उसको मैंने कॉल की। उनमें से तकरीबन हम 10 लोग होंगे, मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं था कि जिसने कॉल सुनी या मैसेज सुना उसी टाइम मतलब कि उधर पहुँचा। उसके बाद मुझे मेरे ख्याल में 20-25 लोग होंगे कि जिन लोगों ने मेरे साथ शिकवा किया कि यार हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया। बल्कि जो हमारे साथी अब्दुल साहब बैठे थे कहते हम तो लौटाना चाहते। तो वो कहने का मकसद है कि वो एक जज्बा था कि जब हम दुख के साथ किसी के साथ जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनके मुताबिक इससे अच्छा रिजल्ट आप कभी नहीं सुन सकते, कभी नहीं। तो अल्लाह ताला मतलब कि सबको अपनी जुबान में रखे। बाकी मतलब कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, वाकई मतलब कि एक हमारी वीकनेस है उसमें मीडिया के सेल पे, उस पर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी एक कानूनी मीटिंग बुला के 10-12 लोगों की कि उसके मुताबिक हम कुछ ना कुछ उस पर इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो चीज़ है हमारी वीकनेस, उस वीकनेस को दूर करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो विलिंग लोग 2-4 लेन ताकि हम उसको मज़ीद मजबूत भी करें, और जो लोगों के प्रॉब्लम हैं, मसले हैं, उनको भी इंशाल्लाह हल किया जाए, देखा जाए। और उस तक मतलब कि जब तक ये मसले हल नहीं होते तो मेरी रिक्वेस्ट आपको भी है, जो इधर नहीं मौजूद उनको भी मेरा मैसेज है कि उस वक्त तक बर्दाश्त करें, सिर्फ बर्दाश्त करना, ताकि मतलब कि ऐसा ना हो कि हम नहीं चाहते कि किसी भी मामले में रिजल्ट हो, किसी भी मामले में। क्योंकि अगर कोई मैसेज करता है तो मेरा तो मकसद ये होता है कि उसको कॉल की जाए और उसकी रिक्वेस्ट की जाए, कुछ भी नहीं होता। अगर उधर ही बहस की जाए मतलब कि 400-500 लोगों में तो वो काम जो है ना ट्यून बढ़ जाती है और होने भी नहीं चाहिए ऐसे। जब भी कभी किसी की बात अच्छी ना लगे तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करो कि उसके ज़ाती नंबर पर कॉल करके वो डिस्कशन कर ली, उसका हल बहुत आराम से निकल आता है, जो बहुत दफ़ा निकला भी। तो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर मुज़म्मिल हुसैन की कि वो मुज़म्मिल हुसैन अपने ख्याल। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरवा मैनेजमेंट का कि बड़े शार्ट टाइम पे मैंने इन्फॉर्म, मैं बल्कि कर ही सका, मेरे भांजे ने किया था। तो 10 बजे जनाजा था और 7 बजे सारे में पता चला, और काफ़ी सारे दोस्त पहुँचे हैं जो कि रात के 2 बजे वापस आए। बावजूद इसके कि हमने और रिक्वेस्ट की थी कि आप स्टे करें। तो मेरे लिए ये बहुत अहम है, इसलिए कि अगर मेरे वाले साहब की आखिरी सफ़र में उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात के लिए लोगों ने जाके अगर दुआ की है तो मेरा ख्याल है मेरे लिए ये अरवा का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बाकी बहुत सारी चीज़ें सर ने कवर करनी है, और इंशाल्लाह जो मैनेजमेंट के हवाले से बातें हैं वो
किसी मुनासिब टाइम पे फिर इंशाअल्लाह इजाज़त करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंजूर हुसैन की से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। और जैसा कि मुझसे पहले सब दोस्तों ने बयान कर दिया कि ये एक मिल बैठने का बहाना है, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये एक मिल बैठने का बहाना है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सारे अपने एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं। और इस तंजीम को बनाने का मकसद भी यही था कि हम एयरफोर्स के रिटायर्ड लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाया करें और एक दूसरे को अपने दुख सुख बांट दिया करें। उसमें से जिस तरह भी जो भी हो सकता है हम एक दूसरे की हेल्प भी करें। इसको हम हेल्प योर सेल्फ के नाम से हम कह सकते हैं। तो मिर्ज़ा साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने इस तंजीम को आगे 4 चांद लगाए और बहुत ऊपर लेके गए माशाल्लाह। और अभी अभी जो आप मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है कि इन्होंने एक सिलाई स्कूल भी बनाया है, उसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट है। और इस तरह सब दोस्त मिलके कंट्रीब्यूशन भी करते रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये तंजीम एक दिन बहुत बड़ी तंजीम बनेगी जी हो इंशाल्लाह। और ये सब आप दोस्तों के तावन से होगा, आप लोग तावन करेंगे तो ये होगा। बड़ी मेहरबानी, आप आते रहिए और एक दूसरे के दुख बांटते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब हमारे मेंबर से और भी है ना, आप फाइनल मेंबर को भी इनका टाइमिंग का होता है। सर सबसे पहले तो मैं ना इस जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इब्तिदा ही मुज़म्मिल साहब के वालिद साहब से की है दुआए मग़फ़िरत के लिए, तो इसका इज़हार मैं अपने अल्फाज में मुज़म्मिल साहब से ही करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे और कोई शौक़ नहीं बात का। तो मुज़म्मिल भाई दिली दुख है कि मैं खुद नहीं शामिल हो सका। मैं रफ़ाकत मालूम साहब, अकरम विरक साहब, हम कोई मगरब और असर के दरमियान वापस आए हैं ननकाना साहब से। और हालत ये हुई कि उस दिन मोबाइल यानी का डिस्चार्ज हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी कि आपके इस दुख में शरीक होते हैं, लेकिन मस्जिद में भी जब इतना बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए, आपके वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत की है, अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल जी जी है कि इन्नमल अमालु बिन्नियत। अब हम मचोर लोग हैं, सुबह देखो तो जी अस्सलाम वालेकुम सुबह का खैर, बच्चों की तरह वो लाइन लगी होती है। अच्छा, एक बंदे का पता चल गया, सपोज कि मुज़म्मिल साहब के वालिद साहब बहुत होंगे, सबको दुख है, सब हमारे कुलीग हैं, हम चाहते हैं कि उनकी अल्लाह की मग़फ़िरत करे। सईद साहब का मैसेज आ गया कि हम तज़ियत के लिए उनमें शामिल हैं। अब वो पूरी लाइन लगी होती है जी, इन्ना नीला व इन्ना लहराजी। भाई एक बंदे की तरफ से हो गया, इट इज़ इनफ। दूसरी बात जो मुझे बुरी लगी है भाई जी, हम थोड़ा सा जी गैदरिंग होगी, हम एक दूसरे के लिए आते हैं, एक दूसरे की वेलफेयर करनी चाहिए, जितना भी हो सके बस पार्टिसिपेट। अच्छा जी जी कब अपलाया जा रहा है उसकी वीडियो बनाओ, खाना पेश किया जा रहा है उसकी वीडियो बनाओ। इट इज़ नॉट गुड। आई थिंक कि मतलब ये चीज़ें हमें मतलब मैच्योर्डनेस हमें ज़िंदगी में क्या सीख है हमारी मुसलमानों की। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली में हज कर आया हूँ, उम्रा करता रहा हूँ। लोग जनाब अली वो वहाँ पे हरम के साथ मतलब वो एक इंटरनली आप अल्लाह के जिक्र के लिए गए तो तस्वीरें बना रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड। अब इसी तरह हमारे प्लेटफॉर्म में भी ये हो रहा है, थोड़ी सी चाय पिलानी है जी वीडियो बनाओ, बंदे बैठे खाना खिलाओ उसकी वीडियो बनाओ। इट इज़ नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह का हमने नीयत ये है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि इन्नमल अमालु बिन्नियत। आप चाहते हैं किसी की तज़कियत के लिए वो डेफिनेटली वो कुछ चाय काबा वो आपको सर्व करता है तो वो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना मैनर से ऊपर हो रही है। बात ये होती है कि कभी ज़िंदगी में कोई बंदा कोई मामला आइडियल नहीं बना सकता, ना हो सकता, ना देख सकता, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि चलो यार हम इधर एक वीडियो बनाते हैं उनकी, आपने देखो मैं आपको बताऊँ नीयत की आपने बताया ना मालूम नहीं यार, ठीक है ना। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जैसे सहाबा कराम के दौर में सहाबा कराम के दौर में एक कुआं था, तो वहाँ पे एक किला प्लेस बना दिया एक सहाबा कराम ने कि चलो को बंदा अपने जानवर को इधर बांध के पानी पिला दिया। ये तो उसकी क्या थी, नेकी की थी ना।
तो चंद दिनों के बाद दूसरे सहाबाकराम है, उन्होंने उसको किले को जो है ना वहाँ से उखाड़ दिया कि किसी के पाँव में लगेगा और किसी का पाँव जख्मी हो जाएगा। दोनों की नीयत क्या थी? पॉजिटिव थी ना। इसलिए ना बल्कि साहब बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों के मतलब माइंड पॉजिटिव होते हैं, कोई नहीं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये ज़िंदगी का ऐसा है, अगर ये ज़िंदगी में ना चार्मिंग हो तो कई लोग वैसे इस दुनिया से चले जाए टेंशन से, ठीक है ना। कोई नहीं, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि कभी भी ऐसा डिबेट ना करो या ऐसी बात ना करो जिसमें किसी की दिल आज़ारी, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई, मैंने देखा है जो लड़ाइयाँ होती हैं मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये चीज़ जो है ना बहुत बुरी है। नीचा दिखाने से बेहतर है कि बंदा उससे वीडियो पे कॉल पे बात कर ले, ठीक है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ खलील साहब की, वो अपनी हाँ स्पेशल ब्रांच वाले सबको सलाम कर रहे थे। लिहाज शाह साहब भी और भी साथियों की कॉल आई थी, सर आपको भी स्पेशल कह रहे थे। और उनकी ड्यूटी आज को अचानक लग गई, जिस वजह से वो साथी नहीं आ सके, तो वो सलाम भी कर रहे थे सबको। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ खलील साहब की, जो भी अपनी ड्यूटी छोड़ के आए हैं, कि वो अपने ख्याल का ध्यान रखें। सर मियाँ साहब की कोई मसला नहीं है चुटका हुआ तो मैं इस एरिए च आया था कदे दोस्तों के नाल मैसेज किया जी मैं तुहानू बेटी कर बाकी है जिहड़ा मार्शल लॉ की गल की ग्रुप दे विच मैनूं बड़ा महसूस होया कि यार गपशप लाउणी हुंदी बाद सारे लोग पास्टे में यार एयरफोर्स की ग्रूमिंग हुई है साडी, असां सारे बच्चों नाने पोतियां आए हैं, असां गलत गल की करनी ग्रुप कोई भी नहीं करनी गलत गल एवें माशाअल्लाह वो ग्रुप में मैसेज मैं कल मैसेज को कर लगा अगे थले लिखा जी मैसेज नहीं करना किला मैं पहले कर लगा कि मैं मैसेज आउट होने लगा सही गल मेरा देर फिर मैं कहा यार एक पता नहीं सुल्तान साहब ने कोई बीगंडियां के नाल मकसद ला रहा है असां गए स्पोर्ट फ्लाइट यार इन्नी सख्ती करी तू सारा रिटायर हो कदे साडे ते वही चलाउंदा मेरी बात नहीं यार मैं बंदे तिन्ना पूरे लोग मैं तिन्ना बंदे ने फोन किया मैं कहा यार तुहानू मैं घरों पे कर लिया उत्ते 15 बंदे 20 बंदे असां होर स्ट्रेंथ ਵਧਾਉਣੇ असां देवे दे बंदे सानू बंदे दसो ते चुक के लिया थोड़ा जिहा हस्सण दो कोई कोल तू सारे हार पकड़ वो फोन की तो लाभ हुंदा ही कोई नहीं होता असां 7-8 ग्रुप ने कसमे साडे तो गल तो बगैर सौंदे नहीं रात अवामी राय आ गई है, पुलिस अफसर ने बता दिया है। अभी हम मैं नहीं पुलिस अफसर मैं आपके जज्बात की कदर करते हैं उनके साथ, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा अभी मैं रफीक शहजाद साहब जो एक्स MP के उम्मीदवार भी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो अपने ख्याल रफीक शहजाद छोटा सा बंदा है जी, मैं क्या सारे हम सलाम करने वास्ते हाजिर है और बाकी सुल्तान साहब की मेहरबानी है ये बुला लेते हैं। लेकिन ये है कि हम सब जो है ना मुख्तलिफ मसाइल और उलझनों का शिकार है हर एक बंदा, चाहे कोई इजी है चाहे कोई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम गुजार रहा है, हर एक को मसाइल। लेकिन यहाँ आकर मेरा ख्याल है कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसा कि मैं खुद थोड़ा सा अपसेट था, आने का भी मूड नहीं था, लेकिन इनकी कॉल आई कि आपने आना है हर सूरत। बहरहाल मैं आया हूँ तो अब दिली तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप सब की बातें सुनने के बाद कुछ थोड़ा सा दिल खुश हो गया माशाल्लाह कि यहाँ आकर ना पता चला है कि अपने घर के लोग हैं सारे एक दूसरे के साथ खुशियाँ भी बांटते हैं, गम भी बांटते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो हमें इस स्टेज से इस प्लेटफॉर्म से मुहैया हो जाती है। तो बाकी रहा काम दुनियादारी का वो चलता ही रहता है, लेकिन एक फाउंडेशन बना लेना, उसको चला लेना, या उसके लिए जैसे कि पहला कदम उन्होंने बढ़ाया है सिलाई स्कूल का, तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने भी अपने ट्रस्ट के ज़रिए तमाम कसूर ज़िले में एक सिलाई स्कूल बनाया था, लेकिन कुछ मेंबरान की नेगलिजेंसी की वजह से वो स्टॉप करना पड़ा। फिर 20-25 सिलाई मशीनें मैंने गरीबों में बांट दी गाँव। मतलब ये है कि इस तरह के भी माहौल होते हैं। तो लेकिन ये अगर हम लोगों सब के तामन से अगर ये काम आगे बढ़ जाता है तो ये अरवा फाउंडेशन का जो है ना पहला कदम मुबारक हो जाएगा। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी देगा और ज़रूर कामयाबी देगा। तो बाकी रहा मामला, ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि मैं
अगर अरवा फाउंडेशन को फाइनेंशियली नहीं मैं कुछ सपोर्ट कर सकता, मेरा प्लेटफॉर्म अर्ज़ो समा मौजूद है, उसमें मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अपनी जो भी कार्रवाई होती है, कोई मजमून कोई चीज़ जो भी बेचना चाहें वो मैं हर माह छापने के लिए तैयार हूँ। दूसरे नंबर पे इसके अलावा मैगज़ीन के अलावा भी है कि छोटे छोटे कामों में अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मुआवनत करते हैं, कोई भी काम हो ज़िंदगी का, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसमें ये अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जब सारे मिल के चलते हैं तो फिर ये कारवां जो है ना, ये कामयाबी की मनाज़िल तय कर लेता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब मुतहद होकर, जैसे कि हमारे कुछ अफसरान जो हैं बड़े अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से नवाजे और अरवा फाउंडेशन को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे और हम सब कामयाब हों। इंशाल्लाह जो बातें सुनते हैं हम कोशिश करेंगे कि मनोरंजन किया जाए। तो अभी सर आबद को अब फुटबॉलों को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्याल जो बातें मैंने करनी थी मेरे से पहले मैंने वही बातें कर दी हुई हैं। खासतौर पर सब बातें मुझे नहीं पसंद आई जो उन्होंने नया दस्ता वो बहुत इनिशिएटिबल है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सुल्तान साहब ने कहा था कि ये गपशप का जो बहाना बनता है ना, ये सबसे जो मेरी ये आइडियल चीज़ है। मैं सारे काम छोड़ के यार वो पुराने दोस्तों से हलवा जल्दी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वेल डन अरवा। वो उस टीम का मेंबर था जिसने 5 जहाज बनाए। मेरा दूसरा बेटा चकलाला में था F7, वो ड्रोन कराते थे 8 जहाज से। मेरा तीसरा बेटा आर्मी में, वो कश्मीर एयर सेक्टर, तो वो कभी में वो फ्रंट पे बोली था। तो मेरे बेटे को टीम में बड़ी अच्छी जानकारी जीतिया जान ये अल्लाह ताला ने फतह दी के लिए किसी फौज का या एयरफोर्स का कमांडर खड़े होके बच्चों के लिए दो वाक्य ये इसको बस प्लीज 4 मज़ाइल आए हैं। ये कलम बंद 3 मज़ाइल अल्लाह ताला ने एयर में फाड़ दी है, मतलब ये अल्लाह करम है ना, तो 3 साल एयर में फट गई। और बाप ने जानकारी क्या बात ये हमारे लिए बहुत ही अजीम मती साहब, जिनको मतलब कि सबको इनसे प्यार है, लेकिन मैं इनकी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्याल करें। एक शेर है, शिकवा जुल्मते शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते। पंजाबी वाली गल वैर भी हो गया, दादे का बदला क्यों नहीं? हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत वैलिड बात है। इसकी मैं एक मतलब कि कहना चाहूँगा कि एक ही बंदे को पता हो, क्योंकि मतलब सिक्रेसी होनी चाहिए सब किसी है ना। एक ही बंदे से मुराद मैं खुद चाहता हूँ कि मुझे बताए, ताकि मतलब कि बाकी लोगों को मतलब हम कन्वे कर सकें। एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और आपको आगे कर दिया जाए। और 1-1 किलो भी अगर सारे दें ना कि जी 1 किलो हम अरवा को दे रहे हैं, तो वो सारा इकट्ठा हो जाए और फिर जिन दोस्तों के घर नहीं कुर्बानी उनके घर पहुँचा दिया जाए। मेरी एक सुजैशन है, फर्ज करो सन पता चल जाए कि 5 बंदे है ने, असी 5-7 बंदे जड़े ने उन्होंने एक शेयर ही दे दीजिए, उन्होंने 20-25 हज़ार नाल फर्क तो कोई नहीं पैंदा।
सर इस ये होगा मुश्किल है कि नहीं गोश्त होएगा। देना आसान है, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਸਾਨ ਹੈ वो कुर्बानी नहीं है। ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ गोश्त दे सकते हो।